Aspirants, very welcome to Unacademy IS in the another session of current affairs dedicated to the interview guidance program. All right, aspirants, this series of current affairs is dedicated to the candidates who are going to appear in 70th BPSC interview. All right, to help all these aspirants in their preparation of the current affairs and the Bihar centric things, national current affairs. All right, as we all know very well, in the BPSC examination, especially at the mains phase, international relations IR dominates. All right, so here what we are trying to do, we are trying to cover as much as possible the relevant topics of the international relations as well, and बिहार सेंट्रिक थिंग्स जो कि आपके काम की हो सकती हैं, as well as national current affairs. Fine. So it's a weekly roundup, and आप यहाँ पर देखेंगे this is the table of contents. So Indian foreign policy 2025. Listen guys, आप जब रियल इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे तो वो 2026 शुरू हो चुका होगा, ठीक है, आप वहां पहुंचेंगे. सो राउंड अप 2025 में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, स्पेशली इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, एज वेल एज रशिया चाइना रिलेशंस, एंड जो हमारा नेबरहुड है. ऑलराइट, तो काफी लेसन्स रहे हमारे लिए. फाइन, काफी कुछ हमें एक जरूरत समझ में आई कि वी नीड टू रिकैलिब्रेट आर फॉरेन पॉलिसी. प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं, एंड आर सक्सेस एज वेल 2014 टू 2025. तो इस टाइम फ्रेम में हमने क्या हासिल किया है. फाइन, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड with this, next topic will be India Africa economic ties. There are about 54 nations in African continent. All right, and major footprint of India, India का जो cultural footprint है अफ्रीका में, that is major, and this is very important for us. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट खास तौर पर अगर हम बात करें, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, डिमांड की बात करें, ग्रोथ की बात करें, ऑल्दो कई सारे 35 के आसपास नेशंस ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है. एंड अगर आप देखें तो 54 में से 35 इज अ वेरी बिग नंबर, राइट. बट अगर अफ्रीका में पीस स्टैब्लिश हो जाती है तो अफ्रीका कैन बिकम द न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पर अगर हम देखें तो, राइट. फर्दर रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सब्सिडी. ऑल राइट, एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जाता है सब्सिडी में, फर्टिलाइजर्स में. एज वी ऑल नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ पर एग्रेरियन जो सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी, नियर अबाउट 50% के आसपास पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है. ऑल राइट, एज वेल एज वी आर इन बिहार, हम बिहार में हैं, सो बिहार का भी एंगल यहाँ पर कनेक्ट होता है, राइट. फर्दर किम्बर्ले प्रोसेस. ऑल राइट, and India and presidency of the Kimberley process, right? I will highlight all these related aspects of the Kimberley process. Then Bihar centric things, Bihar EV policy, fine. Bihar, this is Bihar centric current affairs. Then National Agri Udan Startup Hunt, this is also associated to Bihar especially. Then a Pesa Mahotsav 2025, so national and Bihar as well. All right, Panchayati Raj institutions and the role of the Bihar, right? So I will be highlighting all these things here. Now, aspirants, I am taking you forward. All right, kindly focus here. So the first thing first, that is Indian foreign policy 2025, right? So what are the major takeaways? As I was telling you, in 2025, India faced certain headwinds, and headwinds are associated with the uh, three to four three to four areas. Number one, economic security. All right, as well as China, Russia, neighborhood, and with economic security, we can also connect energy security. All right, energy security. Now, kindly focus here.
2025 exposed vulnerabilities in economic and energy security, limits of the China-Russia balancing, and shrinking regional multilateral space. It's a opening line, important line here. Okay, and at the same time, the decade 2014 to 2025. अगर हम इस पूरे decade को देखें, so what we have obtained, we saw some structural changes. All right, from 2014 to 2025. So what we saw, look east rather than following the look east policy. All right, we emphasized on act east policy. All right, as well as Sagar project, fine, Indian Ocean region के लिए. Then defense self-reliance, a major initiative taken by India, a major push by the Indian government. Then humanitarian diplomacy, ISA, CDRI, LIFE, and G20 leadership. Right? Okay. Now, kindly focus here. You can see here a map. Right? Under this map, you can see US imposed 25% reciprocal tariff on us, all right, and leading to overall tariff. अगर हम टोटल की बात कर ले तो अमेरिका से हम पर जो टोटल टैरिफ पहुंचा वो नियर अबाउट हो गया 50% के आसपास. ऑल राइट, नियर अबाउट कितना हो गया? 50% के आसपास हो गया. एंड अब इससे लॉसेस क्या होने शुरू हुए? लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, ऐसे एक्सपोर्ट आइटम्स, ऐसे एक्सपोर्ट्स जहां पर लेबर का वर्क, लेबर की नीड ज्यादा है, तो वेल ऑब्वियस है कि लेबर की वेजेस भी वहां पर ऐड होंगी. फाइन. सो अब अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 50% के आसपास टैरिफ हो गया, देन डेफिनेटली इंडिया के जो भी आइटम्स होंगे, ऐसे आइटम्स जो कि लेबर इंटेंसिव हैं एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू अमेरिका, सो द कॉस्ट विल इंक्रीज, कॉस्ट बढ़ जाएगा. ऑल राइट, एंड कॉस्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए व्हाट दे विल बी ट्राइंग टू डू, the pressure will come on the laborers and the especially the wages of the laborers. All right, cutting down the wages so that ये जो टैरिफ, जो एक्स्ट्रा टैरिफ है, राइट, उसको काउंटर किया जा सके. राइट, so it's a problematic thing for the laborers and the manufacturers as well as India still lacked GSP benefits. All right, so no cushion of preferential access, as well as Russian oil imports touched around 52 billion US dollar. रशिया से जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है वो 52 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा पहुंचा, 52 बिलियन यूएस डॉलर. ऑलराइट, एंड न्यू यूएस सेकेंडरी टैरिफ्स, उनकी अगर हम बात करते हैं तो मेड इंडिया मोस्ट हेविली टैरिफ्ड मेजर बायर ऑफ द रशियन ऑयल. मतलब ऐसे कंट्रीज जो कि रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ऑलराइट, रशिया से जिनको ऑयल की सप्लाई हो रही है, ऑलराइट, सो उनमें इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ है दैट इज हाईएस्ट. इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया वो सबसे ज्यादा लगाया गया. फाइन, सो दैट इंडिया शुड नॉट बाई ऑयल फ्रॉम द रशिया. ऑलराइट, देन further what we see, here China. All right, you can see here China, here Russia, and we Indians are here, and you can see here America. All right, okay, so kindly see here China. So we try to stabilize the bilateral things with China. All right, especially with respect to the defense economy, right? And our prime minister met with the Chinese premier Xi Jinping, right? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट दोनों कंट्रीज के बीच में, जो बॉर्डर एरियाज हैं, ऑलराइट, जो स्टैंड ऑफ्स हैं वहां पर, तो मीटिंग्स तो है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट. Trust deficit still remained a major problem. All right, as well as trade
and investment curbs on Chinese firms stayed largely intact. ऑल राइट, क्या मतलब हुआ इसका कि जो यहाँ पर जो भी चाइनीज फर्म्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर में, फाइन, अब उस पर बहुत ज्यादा हमने एक छूट यहाँ पर जो है इनको नहीं दी है, फाइन. इंसिडेंट्स लाइक कॉन्सुलर फ्रिक्शन और डिटेंशंस हर्ट पब्लिक परसेप्शन, कि लोगों का वहां पर जाना, ठीक है, फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना, एज वेल एज चाइना का भी जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज है वहां के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अरुणाचल को लेकर के खास तौर पर. सो बातचीत हुई है, वी आर इन टॉक्स विद चाइना, राइट, बट देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ऑल राइट, at the same time, when we are facing all these things with China, so China and Russia relations are thriving, fine. नाउ रशिया जो कि 1971-72 से हमारा एक क्लोज पार्टनर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है, एंड डिफेंस पार्टनर भी रहा है, एनर्जी में भी इन पास्ट 3 to 4 years हमारा जो एक जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ है. ऑलराइट, ऑल्दो दिस इज अ विन विन सिचुएशन एज रशिया ऑल्सो नीड्स इंडिया, रशिया को भी इंडिया की जरूरत रही बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस एंड द यूरोपियन मार्केट जब उसके हाथ से निकल रहा था तो उसे भी बायर्स चाहिए थे कि हम जो रशिया से उसका ऑयल ले सकें, और इंडिया इमर्ज्ड अ बायर एज अ बायर. ऑलराइट, ओके, definitely Russia remained critical for the energy and defense. All right, you can see here as well, remained critical for the energy and डिफेंस, दोनों में रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा. ऑल राइट, ऑयल इंपोर्ट्स बढ़े हैं, ऑयल इंपोर्ट्स सर्ज्ड आफ्टर द अर्लियर सैंक्शंस, राइट. देन अमेरिका का जो फ्रेश एक प्रेशर रहा, ऑल राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक रेपुटेशनल रेजिंग रेपुटेशनल एंड सैंक्शनल रिस्क जो कि इंडिया के लिए रहा कि अगर आप रशिया के बहुत क्लोज जाएंगे तो फिर हम आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया के साथ हमारा जो कोऑपरेशन है उस पर एक कैपिंग, एक अमेरिका का एक प्रेशर भी है, वो भी वर्क कर रहा है कि वी कैन नॉट गो सो मच क्लोज टू रशिया. ऑल राइट, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट आर लार्जर इंटरेस्ट, जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं फिर वो इम्पैक्ट कर सकता है. ऑल राइट, देन further you can see here aspirants shrinking global and regional space. all right, so आपने यहां तक देखा कि चाइना के साथ में हमारा 25 में क्या रहा, रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस एनर्जी डिफेंस को लेकर के रहे, बट under the pressure of America we saw certain limitations as well. all right, okay, as well as shrinking global and regional space. So what is happening here? Listen guys, uh, when we examine the global thing, global stage की हम जब बात करनी यहाँ पर शुरू करते हैं, all right, so new US national security strategy framed India mainly as Indo-Pacific security partner, not as a global co-equal. It's a very important change. All right, I think you must remember about the Quad. आप क्वाड को मेरे हिसाब से आप सभी भूले नहीं होंगे. आजकल आप देखें तो नो वन इज टॉकिंग अबाउट द क्वाड. क्वाड के बारे में कोई खास बात कर नहीं रहा है, राइट. क्वाड जैसे अमेरिका, इंडिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया भी साथ में जुड़ रहा था, राइट. इन मिला करके यहाँ पर इंडो पैसिफिक के अंदर में इंडिया को एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान विद अमेरिका were trying to balance America, trying to balance China, right? Especially in the South China region. Okay, and this was the time कि America used to say कि we see a global partner in India. हम इंडिया में एक ग्लोबल पार्टनर की कैपेबिलिटीज देखते हैं, फाइन. बट आप यहाँ पर देखें कि द इवेंट्स टुक प्लेस इन आर नेबरहुड, राइट. उनका भी इम्पैक्ट है, अमेरिका में भी लीडरशिप चेंजेस है, हमारे भी मिस्टेक्स है, strategic mistakes. Because of the strategic mistakes done by India, leadership change in America, all right, and the changing geopolitical scenario. So now the global stage is shrinking for India. All right, in 2025 हमने यही ट्रेंड देखा. अब ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि फिक्स है, this trend can be changed, इसको बदला भी जा सकता है in upcoming years. All right, that's why I said foreign policy recalibration. अगर वो किया जाता है तो things can be changed. Now what I was telling you, uh,
America is viewing India as a Indo-Pacific security partner. गाइस, जो अमेरिका है उसने पूरी दुनिया को डिवाइड कर रखा है अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि उसके जो फ्लीट्स है, उसके जो नेवी है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, ऑलराइट, तो वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में वो रहते हैं, ऑलराइट, उनके बेसिस हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया इंडो पैसिफिक जो कमांड है इनका, उसके अंडर में आता है। अगर आपने न्यूज देखी हो भी कल परसों में ही, तो बांग्लादेश के अंदर में भी अमेरिका के कुछ सोल्जर्स वहां पर पहुंचे हैं, ऑलराइट, एंड दे आर देयर इन बांग्लादेश टू ट्रेन देम, और यू कैन से ट्रेनिंग फॉर द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, राइट, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि बिकॉज इन बे ऑफ बंगाल का रीजन है, इन द बे ऑफ बंगाल रीजन डिजास्टर्स काफी ज्यादा आते रहते हैं, साइक्लोन्स की प्रॉब्लम रहती है, राइट, फ्लड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए सुनामी भी आया हुआ है यहाँ पर, और फ्यूचर में भी चीजें ऐसी आ सकती हैं एज द लेवल ऑफ द सी इज राइजिंग, राइट, दैट्स व्हाई अमेरिकन वहां पहुंचे। तो अब वो कहाँ से पहुंचे, तो इंडो पैसिफिक से पहुंचे। तो अभी समझ में आपको यहाँ से कनेक्शन आया होगा कि बांग्लादेश में इंडो पैसिफिक से आए हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंडिया आल्सो कम्स अंडर द इंडो पैसिफिक कमांड, ऑलराइट। सो अभी हमारा जो 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 एक इंडिया के लिए एक हो रहा था कि नाउ इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ द अमेरिका, राइट, so that space is shrinking, वो स्पेस हमारे यहाँ से निकल रहा है। ट्रम्प एंड द स्ट्रीम लैंग्वेज रिवाइव्ड G2 एस स्पेकुलेशन। अब ग्रुप 2 की बात हो रही है, मतलब कि बाइपोलर वर्ल्ड, ऑलराइट, एंड गाजा यूक्रेन सीज फायर पॉलिटिक्स, राइट, रिवील्ड इरोजन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, and China pushed its own global governance templates, contesting Western and Indian narratives. Abhi, yes, it's a very interesting thing to know. You must be aware, China extended help for the reconstruction of Gaza. चाइना ने कुछ एक मिलियन, यहाँ पर नियर अबाउट 200 मिलियन के आसपास में उसने सपोर्ट एक्सटेंड किया चाइना ने, कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इसको गजा को रिकंस्ट्रक्ट करने में। नाउ चाइना अपने ग्लोबल ऑर्डर के लिए जो उसके थॉट्स है उनको वो पुश कर रहा है कि दिस इज आर मॉडल फॉर अ सेफर पीसफुल वर्ल्ड, ऑलराइट, दे आर पुशिंग दिस मॉडल, एंड दिस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन मॉडल एंड द वेस्टर्न नैरेटिव्स, ऑलराइट। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म की बात करते रहा है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, देन इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, फाइन, इट मींस कोएग्जिस्टेंस, राइट, इनकी बात करते रहा है इंडिया। बट अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना उसके प्रिंसिपल्स थोड़ा ज्यादा प्रैग्मेटिक है अभी जो दिख रहा है, बट चाइनीज पॉलिसी के कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, फॉल्ट लाइंस भी हैं। फॉल्ट लाइंस ये हैं कि चाइनीज पॉलिसी जो है कि थ्रू ग्रांट्स एंड लोन्स किसी टेरिटरी के ऊपर में अपना इम्पैक्ट, अपना कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। बट देयर इज अ डिफरेंस इज दिस कि अमेरिका एंड ब्रिटेन, ऑलराइट, या वेस्टर्न पावर्स जो भी हैं, अगर ग्रांट्स एंड लोन्स के थ्रू, जो विच इज नोन एज डॉलर डिप्लोमेसी एज वेल, ऑलराइट, जब भी कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं तो फिर भी डेमोक्रेसी को फिर भी वो प्रमोट करते हैं वहां पर। बट चाइना का वो रूल नहीं रहा है, एंड वी हैव द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। हमारे पास श्रीलंका का एग्जांपल है कि हाउ श्रीलंका फेल्ड, एंड अभी भी वो ट्रैक पर नहीं आ पाया ठीक से। एंड मैनी अफ्रीकन नेशंस एज वेल, जो कि चाइनीज डेब्ट ट्रैप जो है, चीन का जो एक कर्ज है, जो उन्होंने उनको डेब्ट दे करके, डेट दे करके उनको किस तरीके से ट्रैप किया, राइट। सो these are the things of concern, fine, but still China is gaining the ground, all right, okay, after this। और इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें, so अब the official stand is very different, all right, the official stand about Israel and Palestine, right, Ministry of External Affairs, so उनका जो ऑफिशियल स्टैंड है वो काफी अलग है। बट फिर भी हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, वी सी अ डिफरेंट थिंग, दैट इज व्हाट गाइस, यहाँ पर कि जो मीडिया है, मीडिया इन इंडिया, ऑलराइट, एंड पॉपुलेशन, साइबर स्पेस, वहां पर एंटी गजा कैंपेन्स जो चलाए गए, जिस तरीके से पैलेस्टाइन को जो है यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया, इजराइल को हाईलाइट किया गया, सो उसकी वजह से जो अरब वर्ड है, उस अरब वर्ड के अंदर में भी जो हमारी प्रेस्टीज है, दैट गॉट अ डेंट, ऑलराइट।
So these are the things we need to address. All right. Okay. Further, आप थोड़ा और आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। इवन अमेरिका से भी जो रिपोर्ट्स आई, रिलीजन की रिपोर्ट्स आई यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वी कैन नॉट कॉपी, हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। आप इन आवर नेबरहुड we see problems with respect to minorities, and definitely this is our duty to protect minorities in the Bangladesh, in the Afghanistan, in the Pakistan as well, definitely। अगर वहां पे हिंदू सब ग्रुप्स, हिंदू ग्रुप्स आर देयर, सिख ग्रुप्स आर देयर, क्रिश्चियन ग्रुप्स आर देयर, तो अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहां पर मेजोरिटी के द्वारा, तो हमें वहां पर उन कंट्रीज में, लाइक इन बांग्लादेश, लाइक इन पाकिस्तान, लाइक इन अफगानिस्तान, वी नीड टू इंटरवीन, हमें इंटरवीन करने की जरूरत बिल्कुल रहती है। ऑलराइट, बट we cannot follow the same pattern in India against minorities। all right, this there is a thin line, यहाँ पर एक बहुत thin line है, right? कि आप जो religious जो politics है, religion based जो politics है, all right, जो neighborhood में हमें बहुत dominating दिखती है, like in Sri Lanka as well। all right, there was a time in Sri Lanka, and वहाँ पर जो सिंघालाज हैं, they started attacking Buddhist and Christians as well, right? and फिर उसके बाद problems escalate करती हैं वहाँ पर। तो हमें ये सब learnings है कि we need to maintain पीसफुल एटमॉस्फेयर इन इंडिया। हमें अपने कंट्री के अंदर में अगर हम ये चीजें बेहतर रखेंगे, तो ग्लोबल स्टेज के ऊपर में हम, हमारा जो एक व्यू पॉइंट है, दैट विल हैव सम ग्रेविटी। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस हम लोग ग्लोबल की बात करते हुए रीजनल पहुंच ही गए हैं। आप यहां पर भी देख लें, यू कैन सी हियर, एंड दिस दिस incident is very important to know what happened here। Pahalgam, all right, Pahalgam attack, then Operation Sindoor just showed military capability but limited diplomatic coalition building afterward। Yes, let me tell you what happened here. When attack happened in Pahalgam, all right, and the global community, the world community stood beside India, right? But what happened after this, when we started doing this Operation Sindoor, all right, so world community, world leaders, right, एक होता है जो ओपन सपोर्ट इंडिया को करना, कि दिस इज राइट टू डिफेंस, राइट टू डिफेंस है जो इंडिया ने एक्सरसाइज किया है, राइट। तो हमें कुछ बड़ा मेजर सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे साथ अलायंसेस की बातें नहीं होती। इवन पाकिस्तान के जो आर्मी में चीफ हैं, असीम मुनीर, ही वाज इनवाइटेड टू अमेरिका, ऑलराइट, दैट वाज अ ब्लो, सेटबैक फॉर अस, कि अमेरिका आखिर ये कर क्या रहा है। मतलब अमेरिका हमारे साथ में इतना बड़ा अलाइज रहा है, हमने उसको ट्रेड पार्टनर रहा है हमारा, ऑलराइट, न्यूक्लियर डील हमने साइन कर रखी है अमेरिका के साथ में। सो अमेरिका शुड नॉट डू दिस, उसे नहीं करना था ये, बट स्टिल अमेरिका डिड दिस, ऑलराइट। सो इट वाज अ काइंड ऑफ एलियनेशन, इट वाज अ काइंड ऑफ also a challenge to India, कि आप, this exposed the fault lines of the Indian foreign policy, कि हम इस विजिट को रोक नहीं पाए। इधर जब ये हो भी गई, तो हमें इसका प्रोटेस्ट एक बड़े पैमाने पर करना चाहिए था, ऑलराइट, although we tried to do, but that was not sufficient, alright, okay। So after this you can see political volatility in Bangladesh, and now it's very obvious, as Sheikh Hasina was saying कि America wants some islands here, यहाँ पर एक island है, alright, America wants in Bay of Bengal that island, and I was not ready to give that island to America, and that's why America promoted anti-government sentiments, alright। So although these are the speculations, but as American presence is increasing in Bangladesh, so it seems that these speculations were right, okay, these statements were right, okay। So abhi, if America is increasing its presence in the neighborhood of India, and especially in Bangladesh, which is very close to the northeastern sector, right, and Bangladesh, Chittagong, Chittagong port is very crucial for India, for, to access the northeastern regions of India as well as Siliguri, right, that is chicken neck corridor। तो अभी आप समझो कि चिकन नेक, नियर बाय द चिकन नेक कॉरिडोर, चाइना इज ऑलरेडी देयर, चाइना पहले से ही है वहां पर, फाइन, एंड चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर देयर,
एज वेल एज अमेरिका का भाई वहां पर आना, तो इट मींस कि अमेरिका चाइना बोथ आर कन्वर्जिंग इन दिस एरिया, राइट, एंड दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्ज भी होते हैं यहाँ पर। एंड कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश इन दोनों के लिए पावर टेस्टिंग ग्राउंड बन जाए। एंड अगर बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी होता है देन डेफिनेटली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। All right. So we need to maintain the balance here. We need to play a proactive role in with respect to Bangladesh. All right. And जो भी leadership, new leadership जो आ रही है in Bangladesh, this is a bit pro Pakistan, right? So अब हमने पाकिस्तान के साथ में टू फ्रंट खत्म किए थे, बट 2025 सॉ कि दैट सेकंड फ्रंट, वो सेकंड फ्रंट जो पाकिस्तान के साथ में हमने खत्म किया था, वो दोबारा से धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है। तो अगेन इट शोज द लिमिटेशन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ऑलराइट, सो नेपाल एज वेल and Myanmar as well and China. Again, Myanmar, Myanmar and China both are junta. In Myanmar, there is a rule of the army. तो junta कहते हैं उसको हम लोग, जनता नहीं है, junta है. All right, and what we say here कि China proposed a rail link from Chinese territory to the Myanmar. All right, so definitely it will pose problems कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, कि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से एक, अगर आप ध्यान से देखो, चाइना एंड अमेरिका, बांग्लादेश एज वेल, ऑल राइट, एंड मोहम्मद यूनुस तो बोल ही चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके इरादे ठीक नहीं है। सो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोटेक्शन है हमारे लिए, दैट्स अ मेजर थिंग, मेजर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, एज वेल एज मणिपुर वायलेंस, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, इरप्ट हुआ, जो अभी तक ठीक से हम उसे मैनेज नहीं कर पाए, एंड नागालैंड में जो प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं वहां पर, तो आने वाला टाइम नॉर्थ ईस्ट के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव। ऑल राइट, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स वेरी सीरियसली। नाउ आगे आप यहां पर देखें, shape out outcomes, engagement sometimes appeared reactive and hedging, not agenda setting। तो एक होता है hedging, hedging मतलब प्रॉब्लम हो गई है तो अब इससे बचें कैसे, ऑल राइट, बट एक होता है कि सेटिंग अप ऑफ द एजेंडा। अभी आप एक बात बताओ कि डू यू हियर अबाउट सार्क, आप सार्क के बारे में सुनते हैं क्या? पिछले कई सालों में 2014 से लेकर के 25 तक हमने सार्क, सार्क एक तरीके से आप ये समझो कि इंडिया ने एक रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम था वहां पर, राइट, बट अगर हम पाकिस्तान की वजह से सार्क को आगे न बढ़ने दें, सार्क वर्क न कर पाए, तो दैट विल बी आर फेलियर। सार्क, बिम्स्टेक, so our leaders promoted these organizations, all right, so that जो हमारा नेबरहुड है, एटलीस्ट नेबरहुड में पीस रहे। अगर सारे कंट्रीज में नहीं तो पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सब में तो रहे। ऑल राइट, सो दीज आर द फेलियर्स, ये कुछ हमारी फेलियर्स भी हैं जिनको, ऑल्दो दीज आर नॉट द कंप्लीट फेलियर्स, ऑल राइट, वी कैन रिवैम्प, हम अभी भी ये जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको प्रमोट करके हम अभी भी एक ट्रैक पर यहाँ पर आ सकते हैं। वी कैन बैक, वी कैन कम बैक ऑन द ट्रैक, ऑल राइट, ओके। नाउ यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर आगे देखें एस्पिरेंट्स, लेसन्स फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब लेसन्स क्या है हमारे लिए यहाँ पर? नंबर वन, यू कैन सी इकोनॉमिक रेजिलियंस फर्स्ट, ऑल राइट, so with respect to economic resilience, what we see here, kindly focus, with respect to economic resilience, you can see diversify export market, we need to diversify our export markets, all right, and rebuild trade tools like targeted sectoral deals, all right, and hedge against coercive टैरिफ्स, जो कि जैसे अमेरिका ने जैसे हमारे ऊपर में टैरिफ्स डाले, ऑल राइट, तो इन टैरिफ्स के अगेंस्ट में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑल राइट, एंड डिपेंडेंसी ऑन वन नेशन for the export, for the import, we need to reduce this thing, right? Further, you can see here smarter energy strategy, all right, because uh,
we are dependent on the import for our energy requirement. जो भी हमारे energy requirements है, we fulfill our energy requirements by import, right? Now, so aspirants, what's happening here? यहाँ पर हो क्या रहा है? Keep Russian energy as a pillar, but expand Middle East, America, and renewables to avoid sanction concentration. अभी आप समझे कि रशिया के साथ में ठीक है, हमारी डील अच्छी चल रही है, ठीक है, जो भी है, राइट? बट रशिया इज नॉट द कन्वेंशनल एनर्जी पार्टनर ऑफ इंडिया. कन्वेंशनल एनर्जी पार्टनर नहीं है वो हमारा, ट्रेडिशनल नहीं है वो हमारा. द ट्रेडिशनल सप्लायर जो हमारे हैं एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए, वो हमारे सऊदी जो जो अरेबियन जो गल्फ कंट्रीज हैं, दीज आर द जीसीसी रीजन जो है, राइट? दिस इज द गल्फ रीजन इज द ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लायर टू इंडिया, और पास भी है. एंड वी हैव cultural relations as well with Gulf region. Fine. So रशिया के साथ में we need not to end the things. हमें end करने की जरूरत नहीं है, उसको आप मेजर में भी रखिए, but we need to diversify all these things so that अगर कहीं से sanctions लगने शुरू होते हैं किसी geopolitical equations में changes की वजह से, so उसका जो impact है हमारे ऊपर में वो minimal रहे. तो आप इसको समझिए. यहाँ पर two things are here: hedging and agenda setting. All right, so at present we are playing defensive, we are hedging out only. All right, but जो ऑथर है वो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है? ऑथर इज ट्राइंग टू से कि वी शुड बी द एजेंडा सेटर. हमें अपने एजेंडा सेट करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली वी शुड एक्ट सो दैट वी कैन फुलफिल द national interest. Right after this, substantive not symbolic diplomacy. All right, जो डिप्लोमेसी है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? मूव बियॉन्ड समिट्स एंड फोटो ऑप्स, राइट, टू वेरिफिएबल आउटकम्स. हमें आउटकम्स की तरफ जाना है कि रिजल्ट क्या निकला, एंड रिजल्ट क्या निकला. ऑल राइट, कि सिर्फ बेनिफिट्स इन द इलेक्शंस, ऑल राइट, लोगों को दिखाने के लिए देखो हमने क्या किया, हमने इनके इनसे मिले, उनसे मिले, बैठे, ये बातें हुई, वो सब ठीक है. That's a superficial thing. All right, in the foreign policy the important thing is this: what is the outcome now? So border mechanism with China and concrete defense tech deals with the US and Europe, these are the things we should take care about. All right, further, credible regional leadership. Listen guys, if India wants a place in the global diplomacy, all right, अगर ग्लोबल स्टेज पर हमें एक जगह चाहिए, ग्लोबल स्टेज पर, if we want a space, all right, then definitely we need to do one thing, and that is what? जो हमारा नेबरहुड है, उस नेबरहुड के अंदर में we should play some active role, something like promoting democracy, human rights, all right, as well as more development finance, connectivity, and people centric projects to avoid perception of reactive power. All right, कैसे नहीं होना चाहिए कि नेबरहुड में हम जब कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो तभी हम वहां पर जाकर के इंटरवीन करें. तो हमारी जो प्रेजेंस है वो हमेशा वहां पर देखनी चाहिए, राइट? और वो प्रेजेंस कैसे हो सकती है? वो कल्चरल कनेक्टिविटी के थ्रू हो सकती है, कल्चरल रिलेशंस के थ्रू हो सकती है, कनेक्टिविटी के थ्रू हो सकती है. दैट कैन बी वाया द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकती है, पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, लोगों का जो जैसे वहां के लोगों को इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ऑलराइट, बांग्लादेश के साथ में भी, तो कल्चरल रिलेशंस को सेटअप करना, स्किल एनहांसमेंट में उनकी हेल्प करना, हमारे लोगों को वहां पर भेजना, उनके लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना. ऑलराइट, सो ऐसे में एक जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव अमंग द मासेस, वी नीड टू सेट दिस एजेंडा. ऑलराइट, सो अगर लोग, अगर वहां की जनता हमारे साथ में होगी तो एक जो ओपिनियन होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, वो पब्लिक ओपिनियन जाता है, एंड दिस पब्लिक ओपिनियन क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द लीडरशिप एज वेल. ऑलराइट, ओके, फर्दर, narrative realism. So what happens here? This recalibrate from the
रिटोरिकल विश्व गुरु, जो हम विश्व गुरु की हमेशा की बात करते हैं कि इंडिया विल बिकम द विश्व गुरु, डेफिनेटली वी हैव कैपेबिलिटीज टू बिकम द विश्व गुरु, ऑल राइट। बट विश्व गुरु बनने के लिए हम लगातार बोलना ठीक है, बट विश्व गुरु बनने के लिए वी नीड टू डू समथिंग सब्सटेंटिव, ऑल राइट, इन आवर नेबरहुड, like problem solving partner, that is Vishwamitra, as Modi ji says, विश्व गुरु तो विश्वमित्र, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, जिस तरीके से उन्होंने आर प्राइम मिनिस्टर, ऑल राइट, यूज्ड दिस टर्म, इंडिया is India aspires to become the Vishwamitra, all right, so with clear deliverables, डिलीवरेबल्स, हमारी जरूरत किसको है, ग्लोबल साउथ, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं इन इंडियन ओशन पैसिफिक, इंडियन ओशन रीजन में, राइट, इन अफ्रीका, इन साउथ ईस्ट, इन साउथ एशिया, इन साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, राइट, ओके। सो इनको लीडरशिप दे सकते हैं हम, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट की आज बहुत जरूरत है, एंड वी हैव ऑल दीज strategies with us, we used all these tactics in the past, right, so we can revive these things now. uh, Digital public goods, fine, further 2014 to 2025, right, so what is the trajectory हमारा क्या रहा है, अगर आप उसको देखें यहाँ पर, so आप एक तो एक बेहतरीन चीज ये रही कि फ्रॉम रिएक्टिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव, ये तो जो अभी हमने बातें करी वो सारी 25 के लिए थी, बट इफ यू सी द larger picture that is from 2014 to 2025, so what we see here, strategic reorientation, all right, from reactive diplomacy to proactive agenda, that act east, think west, connect Central Asia, Sagar project, all right, you can see defense and Atmanirbhar, INS Vikrant, IDEX, MSME integration in defense, right, it's a very good initiative started by the government of India, right. Further you can see rising defense exports, then humanitarian and global south leadership, Operation Ganga, Dost, Devi Shakti, G20 presidency, EU's African Union's entry in G20, ISA, CDRI, Life as norm shaping platforms. So अगर आप देखें, so we are on right track, direction, everything is good, all right, just we need to recalibrate, that's it, all right, and this is the lesson from 2025, as 2025 is departing, all right, 2026 is coming, all right, so these are the lessons for the India's foreign policy. So aspirants, I think I did the comprehensive discussion for you, with you, for the upcoming BPSC interview, all right, after this, जब मैं टॉपिक्स देख रहा था तो मुझे दिखा कि ये तो ठीक है, एंड रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड many 3 to 4 near about 3 nations in Africa, all right, so India Africa economic ties, so it's another important topic for us which we can discuss in today's session now. So kindly focus here, आप यहाँ पर देखें, India Africa economic ties in 2025, and represent a strategic pivot for India toward diversification, manufacturing partnerships, and South cooperation, with bilateral trade nearing US $100 billion, and PM's visit to Namibia, Ghana, and Ethiopia, 3 African nations. Recent visit paid by the Prime Minister of India. All right. So what we can see here, आप यहाँ पर देखा जरा, India Africa engagement counters over reliance on US EU markets, 40% of exports, and amid 2025 tariff shocks, positions Africa as fourth largest partner and taps Africa's AFCFTA driven growth. Now, key drivers include export diversification, petroleum, pharma, all right, these are dominating factors, dominating sectors, sorry,
Geopolitical realignment post G20 AU inclusion and a competition with China's US $200 billion trade dominance. अगर आप यहाँ पर देखें, so हम कहाँ पर हैं? We are near about $100 billion पर है अफ्रीका के साथ में, एंड चाइना $200 billion के साथ में है यहाँ पर. ऑल राइट, सो डेफिनेटली गाइज, डेफिनेटली थोड़ा सा क्या, हमें थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर रहेगी. ऑल राइट, सो इन अफ्रीका वी कैन सी फ्री ट्रेड एरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड area. All right, so in this free trade area, India can get multiple benefits from here. What kind of benefits we can get? Kindly focus here. I can highlight. Please see. So ये जो आपके सामने जो फिगर्स हैं, ठीक है, आप यहां पर देखें जरा. होल्ड ऑन, ठीक है. इंडिया एंड अफ्रीका हैव अ कंबाइंड पॉपुलेशन अगर आप देखें तो नियर अबाउट 2.3 बिलियन की पॉपुलेशन है. इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के जो लोग हैं, दोज हु आर लिविंग इन अफ्रीका, ऑलराइट, नियर अबाउट 3 मिलियन पीपल, मतलब कि 30 लाख. कितने लोग हो गए? 3 मिलियन, मतलब के आसपास कितना हो गया? 1 मिलियन 10 लाख. ऑलराइट, सो 30 लाख. ऑलराइट, एंड देयर इज 50,000 प्लस स्ट्रॉन्ग एथनिक अफ्रीकन डायस्पोरा. 50,000 के आसपास जो अफ्रीका के लोग हैं वो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं. ऑलराइट, नियर अबाउट 50,000 प्लस, राइट. एंड इंडिया अफ्रीका बायलैटरल ट्रेड, ओके, सो ये हमारा पहुंच चुका है कहां पर? नियर अबाउट 100, ये पहुंच चुका है हमारा $100 बिलियन पर, ठीक है. एंड द ट्रेड हैज इंक्रीज्ड 20 times in past 15 years. Fully formed Indian female police unit is also present in Liberia. Near about 4,500 Indian soldiers are on the ground in Africa under various UN peacekeeping forces, right? And India offers 900 plus scholarships to African students each year. Indians owned operated companies are second largest employers in Nigeria. Nigeria के अंदर में जो Indians चला रहे हैं companies. So we are providing employment in Africa, right? And 3% of South African population consists of people of Indian origin, as well as India is currently spending $7.5 billion on infrastructure projects over 40 countries in Africa. All right, so आप देखो, we have a strong footprint in Africa and we are increasing. All right, this further, why Africa will become a prominent player in global geopolitics. Number one, strategic resources. 30% of world's mineral reserves in Africa. Rare earth metal demand to double by 2030, and Africa is a major supplier. Sorry. Then you can see here, demographic powerhouse, population to reach 2.5 billion by 2050, largest and youngest workforce globally. Then ECOWAS marked 50 years of regional stability and hope through progress. 60% live in poverty, but reforms show promise. 35 plus ongoing non-international conflicts, local conflicts, tribal conflicts. All right, this is a major problem. इसको sort out कर लिया तो Africa will be on track. All right. So key for global security and stability. Second highest reason for armed conflicts. All right. So दो तीन चीजें हैं, like promotion of democracy. All right. And जो भी यहाँ पर local conflicts हैं, like इथोपिया में हम देख सकते हैं, right? घाना में भी we can see the conflict as well, right? In Rwanda, Uganda, fine. So in all these countries, all right, so in all these countries we see multiple problems are present, but at the same time, when we see the western part of the Africa, this western part of Africa, all right, so west african states west african states are showing are showing
रेजिलियंस यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर में, एंड नाइजीरिया, नाइजर, ये सब भी हमको यहीं पर देखने को मिलते हैं। अटलांटिक के साथ में, अटलांटिक कोस्ट पर हमें ये एरिया देखने को मिलता है। ऑलराइट, ओके। अगर आप देखें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन नेशंस, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि अफ्रीका में जो वेस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, आप उनको इंडिपेंडेंस पहले मिली है। एंड वी ऑल नो वेरी वेल क्वामे नक्रुमा। क्वामे नक्रुमा वाज द मैन who is known as the founding father of the non-aligned movement, right? So uh, this is the importance of the West Africa. Fine. Further, let me highlight some other aspects here. आप यहाँ पर देखें, India to Africa FY24, okay, exports. You can see India to Africa $38.17 billion FY24. Imports 6% of India's total, nearly 6%. And further आप यहाँ पर देखेंगे, then limitations है, concentration, risk, and underused incentives, MSME exclusion. Then जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप यहाँ पर देखें पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, राइस, टेक्सटाइल, एंड मेजर कंसंट्रेशन टू द नेशंस नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। ऑलराइट, एंड अगर आप यहाँ लिमिटेशंस में देखें तो चाइना लीड्स इन द इंडस्ट्रियल डेप्थ। चाइना यहाँ पर, जो कि मैंने पहले बताया था, नियर अबाउट 200 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट, 200 बिलियन डॉलर ट्रेड के साथ में चाइना हमें यहाँ पर डोमिनेट करता हुआ दिखता है। ऑलराइट, नाउ फर्दर लेट मी हाईलाइट सम अदर पॉइंट्स हियर गाइस। you can see here manufacturing focus. All right, so India can provide a push to the manufacturing, move from commodities to joint value chains. All right, leveraging African incentives and US access via preferential tariffs. Okay, अगर हम जो यहाँ पर रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल एज पॉपुलेशन, राइट, इनको यूज करना शुरू करें एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पर सेटअप करना शुरू करें जो सेफर एरियाज हैं, ऑलराइट, वहां पर, तो हम एक अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं यहाँ पर, एंड वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वहां से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो उस रिस्पेक्टिव कंट्री को, अफ्रीकन नेशन को भी बेनिफिट होगा, एंड अ फ्री ट्रेड एरिया है खासतौर पर अफ्रीका के अंदर में, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ बीच में। ऑल्दो जो लोकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ द रीजनल कन्फ्लिक्ट्स सिचुएशन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। ऑलराइट, दैट्स अ थिंग ऑफ कंसर्न, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। Further, you can see here AFCFTA. All right, so 1.3 billion consumer market integration via REC. That is a ईस्ट में, वेस्ट में, सदर्न अफ्रीका के अंदर में। All right. Further, you can see here MSME enablement. So अब ये कैसे हो सकता है? Under the MSME enablement, what we can do here, we can extend lines of credit. ऑल राइट, हम इसको बढ़ा दे, इसको लाइंस ऑफ क्रेडिट मतलब कि उनको जो है लोन वगैरह इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। देन वी कैन पुश टू ट्रेड इन लोकल करेंसी, दैट मे बी अनदर ऑप्शन। देन इंश्योरेंस पूल्स टू बूस्ट स्मॉल एक्सपोर्टर्स, वाइटल फॉर बिहार। अब देखो हम लोग बिहार में हैं, so I highlighted the Bihar connection as well. Insurance pools to boost small exporters, and अब बिहार में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, एग्री बेस्ड MSMEs हैं इन बिहार। ऑल राइट, सो इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को by promoting the food processing units in Bihar, all right, we can provide a help here. Further, logistics connectivity, port investments, maritime corridors to cut freight cost, fine, as well as services edge,
IT, digital, health exports, plus skill programs. So we can provide a push to these things as well, to these sectors as well, right? Okay, further you can see here, आप यहाँ पर आगे देखिए. Then what is the Bihar connection? If अगर हमारा जो कनेक्शन है, अगर जो जो हमारा ट्रेड है, और देखिए इट्स राइजिंग, ये बढ़ तो रहा ही है विद अफ्रीका. फाइन. सो बिहार कैन ऑल्सो गेट द एडवांटेज. बिहार को हम एडवांटेज दे सकते हैं, बिहार एडवांटेज ले सकता है. कैसे ले सकता है? Listen, guys, what items we are exporting to African nations, all right? We need to identify these items, and in these items, Bihar का क्या role हो सकता है? Like you see, rice, textile, all right? Rice and textile. These are items we export to Africa, and we can provide push to rice production, textile industry in Bihar, right? And we all know very well, in 17th century, 18th century, Bihar, when Bihar was the part of Bengal, right? So textile industry in Bihar was thriving, and till date, agar government support करे, right? You can see here, we have Bangladesh in neighborhood. Bangladesh है हमारे करीब में, and textile industry in Bangladesh is the backbone. So definitely, textile industry in Bihar also can provide employment to many people. And textile में production अगर बढ़ेगा हमारा बिहार में, then we can export these items as well. Okay, further what we see here, aspirants MSME angle, all right. Then we have सात निश्चय, 7 resolve, all right. Under the 7 resolve, we have resolve number 2 and 3. Resolve number 2 and 3, industry, employment generation. So अफ्रीका के साथ में जो इंडिया के जो टाइज हैं, अगर वो बेहतर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्री में जो हमारा एक यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, राइट, वो भी बेहतर होगा. फर्दर आप और इसमें आगे देखें यहाँ पर, इसके अलावा जो डिपेंडेंसी ऑन वेरियस मार्केट्स, दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड. फर्दर यू कैन सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो माइग्रेशन विल बी स्टॉप्ड, माइग्रेशन विल बी रिड्यूस्ड, वो चेक होगा हमारा, कम होगा वो. एज वेल एज रामसर कंजर्वेशन. अगर हम एग्रीकल्चर एग्रीटेक एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, तो जो वेटलैंड प्रोटेक्शन है हमारा, उसको भी हम एक सपोर्ट यहाँ से दे सकते हैं. ऑलराइट, now let me show you some other things here. I need to use the map. All right, so just a while. All right, so I hope this map is visible to everyone, right? Kindly see. आप यहाँ पर देखें, you can see here Ethiopia. आपको यहाँ पर दिख रहा है इथोपिया का एरिया. You can see here नामीबिया. आप नामीबिया को यहाँ पर देख सकते हैं. All right, and घाना आप वेस्ट में यहाँ पर देखेंगे. You can see here Ghana as well. All right, now, so aspirants, when we see Ethiopia, all right, so Ethiopia is associated to the access to the Red Sea. यमन का एरिया यहीं पर है. ओके, सो आप बाब अल मंदेब एनर्जी रूट, स्वेज कैनाल कनेक्शन टू द इजिप्ट, स्वेज कैनाल कनेक्शन. ऑल राइट, सो यहां पर इथोपिया के साथ में अगर हम अपने टाइज को बेहतर करते हैं, सो अरेबियन सी के अंदर में, इंडियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर में, अरेबियन सी में जो हमारी प्रेजेंस है, दैट विल बी इम्प्रूव्ड. ऑल राइट, एंड फॉर द प्रोजेक्ट सागर, दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल. नामीबिया के साथ में भी हमारे टाइज ठीक है, और आप देखें नामीबिया अटलांटिक के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है, अटलांटिक कोस्ट के साथ में एसोसिएटेड है. घाना को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो घाना भी हम देखते हैं कि आप देखें यहाँ पर घाना को, यू कैन सी हियर घाना एंड अटलांटिक के साथ में, एंड वेस्ट अफ्रीका में है. तो आप ये देखिए स्ट्रेटेजिक विजिट है सारी के सारी. ये इथोपिया, ऑल राइट, एंड नामीबिया एंड घाना. फाइन. तो
एक यहाँ पर इथोपिया को आप देखें तो इंडियन ओशन है, और बाकी नामीबिया एंड घाना देखें अटलांटिक की तरफ है। एंड वेस्ट अफ्रीकन जो इकोवास है यहाँ पर, जो उनका इकोनॉमिक यूनियन है, राइट, एज वेल एज AFCFTA है इनका। तो अब यहाँ पर अगर हम अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज कर पाते हैं, यहाँ पर आप देखें प्रोजेक्ट्स को हम आगे बढ़ा पाते हैं। नाइजीरिया आप देखें, मैंने बताया घाना और नाइजीरिया देखें आप पास पास में है, यहाँ पर इंडिया का अच्छा प्रेजेंस है नाइजीरिया के अंदर में, ऑलराइट। एज वेल एज इन युगांडा, छोटे छोटे कंट्रीज अगर यहाँ पर देखें आप, युगांडा है, तो युगांडा में भी, युगांडा वी कॉल युगांडा मिनी गुजरात, ऑलराइट। सो इंडियंस का एक अच्छा प्रेजेंस है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स है। एंड by this way, these are the things I was highlighting in this session. These are the things I was highlighting, and by using these aspects, these things, fine, so we can provide a push, fine, to, and in this development of Africa भी होगा, और India will also get the benefited, and बिहार भी benefit इसमें लेगा। Now I am taking you forward towards the next topic, and that is reforming the fertilizer subsidy. All right, reforming the fertilizer subsidy. So what's happening here under the fertilizer subsidy? Listen guys, it's a लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, बड़ी पुरानी डिमांड रही है कि जो इंडिया है, भारत है, हमें जो द सब्सिडी वी प्रोवाइड टू द फार्मर्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स, वी नीड टू रेशनलाइज दिस, हमें इसे रेशनलाइज करने की जरूरत है। एंड आप इसी में देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड। आप लोगों ने फॉर श्योर, आई एम प्रीटी श्योर, इसको कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा सॉइल हेल्थ कार्ड को, ऑलराइट। सो सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों शुरू किया गया था इसको? सो दैट सॉइल में कौन सा मिनरल, कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, कौन सा कितने अमाउंट में चाहिए, accordingly we will use the fertilizers. This was the purpose, this was the agenda, all right. क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा हमारी सॉइल है कैसी, राइट, सो हम उसे कौन से फर्टिलाइजर्स दें, तो ये हमेशा डिबेटेबल रहेगा। नाउ गाइज प्लीज फोकस हियर, रिफॉर्मिंग द फर्टिलाइजर सब्सिडी। सो this is the India's second largest subsidy after food. Very important point, second largest है। As well as rising global energy prices, because fertilizers को बनाने में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उनके लिए हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है। देन वेल ऑब्वियस है कि एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, डिपेंडेंसी कहां पर हो गई? इंपोर्ट पर हो गई। एंड एज ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ेंगे, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, एंड बर्डन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बढ़ते हुए चला जाएगा। And we all know very well here about 50% of our population is involved in the agricultural activity, and that's why government of India is providing a push कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोगों को लेकर के जाएं। बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तब ले जा पाएंगे जब हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी उतनी, ऑल राइट, although we are providing a push. Then heavy import dependency, as I already highlighted. सेकेंड आप देखें, थर्ड आप यहाँ पर देखें, डिस्टॉर्टेड प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसीज आर नॉट यूनिफॉर्म, ऑलराइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2024-25 में नियर अबाउट वी प्रोवाइडेड 2 लाख CR, 2 लाख करोड़ की हमने सब्सिडी फर्टिलाइजर्स में दी, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो एस्टिमेट्स हैं वो है नियर अबाउट 2.5 लाख CR का एस्टिमेट है। इट्स ह्यूज, ऑलराइट। सो इश्यू इज नॉट विथड्रॉल। अब कुछ लोगों का कहना है खत्म कर दें, some scholars suggest we should stop this, बंद कर देना चाहिए। बट 50% पॉपुलेशन, आप समझ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ सडन सब्सिडी खत्म कर देना, दैट्स नॉट एन ऑप्शन।
but definitely we can target it, we can reorient this, reorientation can be done. All right, okay, so under this क्या हो सकता है? Number one, correct price signals, improve nutrient balance, enhance productivity, as well as protect farmers incomes. अगर फार्मर को हम दूसरे सेक्टर से भी इनकम के सोर्सेस बनाने शुरू करें, उसको सपोर्ट करना शुरू करें, तो डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर विल बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हम कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ सो ये तो ओपनिंग लाइंस हो गई। नाउ प्लीज फोकस, व्हाई फर्टिलाइजर सब्सिडी रिफॉर्म इज बैक इन फोकस? फिर से इस पर डिबेट क्यों शुरू हो गई है? बिकॉज ऑफ द फिस्कल एक्सपेंशन, बिकॉज जो हमारा एक्सपेंडिचर है ऑन द फर्टिलाइजर सब्सिडी इट्स राइजिंग, ये बढ़ते जा रहा है। और मैंने बताया अभी 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, एक्सीड्स टोटल एलोकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर के वेलफेयर पर जो हम 1.37 लाख सीआर के आसपास टोटल रखते हैं अपना एक्सपेंडिचर, सब्सिडी में अकेले 2.5 लाख सीआर का एस्टिमेशन है। ये एस्टिमेशन है FY26 के लिए। पॉलिसी असिमेट्री भी है, प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, जैसे कि यूरिया है, यूरिया जिसके प्राइस हम लोग कंट्रोल करते हैं थोड़ी सस्ती है, राइट, बट डीएपी एंड एमओपी की अगर हम बात करते हैं तो डी कंट्रोल्ड है एंड अंडर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, एनबीएस के अंदर में ये लोग आते हैं, ये प्रोडक्ट डीएपी एंड एमओपी उसमें जाते हैं। देन वी कैन सी मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है, मैंने पहले कहा था आपको कि पेट्रोलियम एंड गैस एटसेट्रा दीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, राइट। सो नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो कि फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज होती है, उसका यहां पर आप नंबर देखें, इट्स 78%। Phosphatic fertilizers 90% import is, all the items are imported, import किए जा रहे हैं सारे के सारे। Potash nearly 100% import, and this exposes India to energy shocks, currency volatility, geopolitical risks. All right, so these are the major problems here. Now, structural distortion. All right, so nutrient based subsidy, NBS, nutrient based subsidy, NBS. All right, under this what we see, यूरिया kept outside NBS, यूरिया को तो बाहर रखा हुआ है हमने इससे, and this undermines nutrient based pricing logic. After this, stable growth, low inflation creates a space for politically sensitive reforms. अभी अगर फिलहाल हम देखें, सो ग्रोथ एक हद तक एग्रीकल्चर में स्टेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई नहीं है। ऑल राइट, हाई तो है बट फिर भी उतना ज्यादा हाई नहीं है। ऐसे में होता क्या है कि जब दूसरे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स आर लो, अगर वो थोड़ा सा कम है, लो है, सो ऐसे में वी गेट द स्पेस, हमें मिलता है स्पेस कि हम रिफॉर्म को आगे बढ़ा सकें। फाइन, नाउ now what we see here, how price controls distort nutrient use. जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स के यूज को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, वो हमें यहां पर देखने का जरूरत है। कैनली फोकस हियर, यूरिया प्राइस फिक्सेशन, तो यूरिया का तो हमने प्राइस फिक्स कर रखा है एमंग चीपेस्ट, अगर दुनिया भर में आप हम देखें तो यूरिया का जो प्राइस है वो ग्लोबली सबसे कम है इंडिया के अंदर में। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ जो एनबीएस है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, उसमें एक डिजाइन फ्लॉ भी है उसका। ये फर्दर न्यूट्रिएंट लिंक्ड सब्सिडी ओनली फॉर, अब जो एनबीएस है, राइट, तो ये सब्सिडी किसके लिए है? दिस इज ओनली फॉर द फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। ऑलराइट, सो phosphorus, potassium and nitrogen, these remain under the price control, NPK. That's it. All right, and yes, NPK हो गया, नाइट्रोजन
phosphorus and potassium. Further, you can see consequences. What are the consequences here? Consequence is this: excessive nitrogen application, under use of uh, potassium and phosphorus. नाउ जो एनपीके रेशो है, ऑलराइट, जो रिकमेंडेड रहता है, एनपीके एनपीके रेशो, द रिकमेंडेड रेशो ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus and K for potassium, recommended ratio is 4:2:1. ऑल राइट, बट इंडिया के अंदर में हम अगर इसको देखते हैं तो ये हमारे कंट्री में निकल के आता है, इंडिया में अगर हम इसको देखते हैं तो 10.9:4:1, ऑल राइट, इज टू 1, 10.9। अब देखो यहां पर फॉस्फोरस की बात करें तो ज्यादा है, पोटेशियम ठीक है, एंड नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो एक्सेसिव है, बढ़ा दिया, ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा जा रहा है सरफेस में, सॉइल के अंदर में, ऑल राइट, and definitely it will lead to certain other problems. Eutrophication of the water bodies, अगर वाटर बॉडीज के अंदर मिनरल्स का नंबर बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो, राइट। सो बाय न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इज लो, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ये कम क्यों है, ऑलराइट। सो लो एनयूई लेवल्स, काइंडली फोकस हियर, आप यहां देखें, लो NUE levels, under this please focus, आप यहां देखें। So only 35 to 40% of the nutrients absorbed, environmental cost भी हमारा यहां पर बढ़ता है, 35 से 40% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ऑलराइट, दैट्स इट। बाकी सारे वाटर बॉडीज में, एनवायरमेंट में, सरफेस पे रह गए, वाटर बॉडीज में मिल गए, दैट्स इट। अब उसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स विल कम, दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे सामने, लाइक वी सी जो फूड ग्रेन्स हैं, उन फूड ग्रेन्स के अंदर में भी ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये केमिकल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन इज राइजिंग, ये बढ़ रहा है, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। फर्दर, नाइट्रोजन लॉस इमिटेड एज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल राइट, एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है आप समझो, यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन सरफेस में गया, वो वहां से N2 किस फॉर्म में निकलेगा, will release in the form of N2O, that is nitrogen, that is sorry, nitrous oxide, and this is 200, near about 278 times more potent, more harmful than carbon dioxide. Major problem. So it means agriculture sector is also contributing in the pollution, worsening of the air quality, climate change. All right. So these are the things which are associated, right? We need to take care of, हमें ध्यान देने का जरूरत रहेगा इस पर, as well as nitrogen content is high, all right, in the soil, and leaching, nitrate leaching, that means ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट मिलना शुरू हो जाएगा, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर रिस्क, जो पीने का पानी है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, उसकी वजह से ढेरों अदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इकोनॉमिक लीकेजेस, दीज आर द थिंग्स। एंड फर्दर आप यहां पर देखो, आप इसीलिए कई सारे जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं, वहां पर आप देखें ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, ऑलराइट। और ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसका कनेक्शन अगर आप देखेंगे, चलिए मैं आपको भी टाइम देता हूं यहां पर, आप खुद भी एक बार देखेंगे इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑलराइट। और आप यहां देखेंगे
under this, all right. So आप जब इसको पढ़ेंगे कभी भी, देन यू विल सी हियर कि जो नाइट्रेट है, राइट, जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं लाइक नाइट्रेट्स, फाइन। नाइट्रेट में आप यहां देखें तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, यहां पर देखो आप ऑक्सीजन आ गया। नाइट्रेट में भी आप देखेंगे, सो अंडर द नाइट्रेट NO3 formula is NO3 minus, all right. So you can see here three atoms of the oxygen, and इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करेगा, देन दिस विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, all right, and ultimately many problems, especially lung related problems in the babies, which is known as blue baby syndrome, all right. So this is the nitrite or nitrate or nitrogen connection. Further आप यहां पर देखें, let me highlight all these things as well. 20 to 25% subsidized urea diverted to non-agricultural use. Yes, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं कई सारे जहां पर यूरिया को यूज किया जाता है, फाइन। कई जगहों पर तो यूरिया जो है, दिस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मैनी अदर केमिकल्स, इवन एक्सप्लोजिव्स को बनाने में भी यूरिया इज यूज्ड, एज वेल एज यूरिया जो कि इंडिया में काफी सस्ता है, राइट। सो स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स is another problem. Smuggling across border is another problem. Yes. Now, policy design lessons from China. अब चाइना में भी, क्योंकि चाइना में भी अगर आप देखें तो चाइनीज रिवॉल्यूशन जब होती है, ऑलराइट, अंडर माओ जेडोंग, सो वहां पर भी हम देखते हैं कि आप रोल ऑफ द पीजेंट्स प्लेड अ मेजर रोल ओवर देयर. So what we see here, we can take lessons from China. चाइना से भी कुछ सीखा जा सकता है. Yes, that is what, per unit land, per unit based land subsidy, market determined fertilizer prices. जो प्राइसेस हैं थोड़ा सा उनको मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इनोवेशन बेस्ड इंसेंटिव्स कि अगर कोई फार्मर ऐसा है कि उसने जो फर्टिलाइजर्स का यूज है उसे कम किया है, राइट, रिड्यूस किया है उसको, सो वी कैन प्रोवाइड सच फार्मर्स सम इंसेंटिव्स, राइट, as well as integrated nutrition management like soil health card, all right, as well as balanced application encouraged. जो इसके जो पहले का पॉइंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में सैंपलिंग करवा सकती है सॉइल की अपने आप से. सॉइल हेल्थ कार्ड में तो फार्मर को खुद जाना है, बट सॉइल हेल्थ कार्ड का लिमिटेशन ये है ग्राउंड पर कि लैब्स नहीं है. लैब्स आर, अगर हैं भी तो द नंबर ऑफ द लैब्स आर लेस. सो एक सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट आने में टेक्स लॉट ऑफ टाइम लग जाता है. तो जितना हम फार्मर तक अपना आउटरीच बढ़ाएंगे, आउटरीच जितना बेहतर होगा फार्मर तक, राइट, तो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं उनका बेनिफिट भी फार्मर तक पहुंचेगा और अल्टीमेटली सोसाइटी विल आल्सो गेट द बेनिफिटेड एंड गवर्नमेंट एज वेल, एज सिंपल एज दैट. देन आप आउटकम क्या हो सकता है यहां पर, ओके, आउटकम ये हो सकता है एस्पिरेंट्स, द प्रोडक्टिविटी विल बी बेटर. यू कैन सी हियर, आप देखो यहां पर हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर न्यूट्रिएंट बैलेंस एज वेल एज इकोलॉजिकल सेफ्टी, ओके, एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज डिस्पाइट हायर इंटेंसिटी. जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका यूज बेटर तरीके से हो सकता है डिस्पाइट हायर इंटेंसिटी. ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स हियर. नाउ रिफॉर्म पाथवेज प्रपोज्ड. क्या क्या रिफॉर्म यहां पर और किए जा सकते हैं? ग्रेजुअल यूरिया प्राइस डी कंट्रोल. जैसे यूरिया है, यूरिया को तो प्राइस हमने कंट्रोल कर रखा कंप्लीटली, सो
वी कैन ग्रेजुअली इसको डिकंट्रोल कर सकते हैं, धीरे धीरे प्राइस जो है मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं, एकदम से नहीं। ऑल राइट, फर्दर फर्दर व्हाट कैन बी डन, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। फार्मर्स की इनकम को अगर देखो, अगर इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की तो डेफिनेटली, अगर इसकी इनकम इफ इनकम ऑफ द फार्मर इज इंक्रीजिंग, सो अफोर्डेबिलिटी भी तो बढ़ती है वहां से। फर्दर एनबीएस रिकैलिब्रेशन, जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है, एनबीएस हमारा जो है, ओके, एमओपी के लिए, डीएपी के लिए, उसको हम रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रमोशन, we have different learnings from the Israel, Japan, right? तो वहां से जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रमोशन है, राइट, कि रादर देन पूरे सॉइल में ही आप माइक्रो न्यूट्रिएंट को फैला दें, तो जो रूट्स हैं प्लांट्स की, टारगेटेड न्यूट्रिशन अगर हम डिलीवर कर पाए, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हो सकता है, ऑलराइट, एंड वी हैव मेनी अदर मैकेनिज्म्स एज वेल एज, वहां से हो सकता है, राइट। तो ऐसे में प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट भी होगा, एज वेल एज जो क्रॉप्स होंगे, उन क्रॉप्स के अंदर में भी जो हार्मफुल मटेरियल है उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा नहीं होगा, एंड कॉस्ट भी कम होगा, फार्मर का भी और गवर्नमेंट का भी, एज वेल एज डेटा इंटीग्रेशन। अब सीधी सी बात है कि इन सब चीजों को करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, we should have proper data, we should have proper information, right? So without proper data, without proper information, all these things cannot be achieved, right? So data integration is a must to implement all these things. Now expected gains from reform, अब इससे अगर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नंबर वन, नियर वी कैन सेव नियर अबाउट 40,000 सीआर एनुअली, हर साल 40,000 करोड़ बचाए जा सकते हैं, एंड दीज फंड्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कंसर्न इन एग्रीकल्चर। ऑल राइट, एग्रीकल्चर में R&D को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर सब छोड़िए, 40,000 सीआर में 10,000 सीआर भी R&D में डाल देते हैं, ऑल राइट, सो इट विल लीड गुड रिजल्ट्स, एज वेल एज इरिगेशन, हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एज climate risk is rising, climate risk is growing, all right, climate change is a reality, so definitely हमें ऐसी क्रॉप चाहिए होंगी जो कि जिनकी जिनको कम पानी की जरूरत पड़े, यील्ड हाई होना चाहिए। सो फ्यूचर में, क्योंकि वी हैव अ वेरी बिग पॉपुलेशन, so how will we meet the demand of the food in future, right? And that's another thing, and here comes the role of Bihar as well। आप ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि बिहार में we have population density is high, as well as एग्रीकल्चर एग्री सेंट्रिक है बिहार हमारा। ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर हैं, अगर ये डी कंट्रोल होना शुरू होता है, तो डी कंट्रोल, अगर यूरिया को डी कंट्रोल करते हैं प्राइसेस को, राइट, एनबीएस को रिकैलिब्रेट करते हैं, सो इसका इम्पैक्ट जो बिहार में हमारे फार्मर्स है उन पर आएगा। सो फॉर दिस हमें पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हम फार्मर्स को इनकम सपोर्ट पहले से दे पा रहे हो, सो दैट जब प्राइसेस को डिकंट्रोल करें तो फार्मर उसे मैनेज कर सके। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स हियर, एंड farm income, balanced nutrients, higher yield quality, precision farming, profitability will be increased, right? As well as अगर एनवायरमेंट की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, मैं N2O बता रहा था आपको, सो दिस विल बी reduced, less groundwater contamination because of the leaching of the nitrate, right? Okay, further you can see growth multipliers, higher rural incomes, increased demand for manufactured goods. These are the things which we can see here. Okay guys, okay, so next topic is Kimberley process. All right, it's a place in Africa. All right, and Kimberley process is very unique and very interesting to know. And we have some learnings from the Kimberley process for the Bihar as well. All right, so taking you forward, आगे ले चलते हैं आपको यहीं से. What's happening here? India is assuming the Kimberley process KP, that is known as KP. All right, Kimberley process chairmanship from January 1, 2026. It's third
टाइम प्रीवियसली 2007 एंड 2013 हम पहले भी यहाँ पर चेयरमैनशिप में आ चुके हैं. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस? Its position as a global diamond hub, 90% of world's cutting polishing to curb conflict diamonds and strengthen ethical trade norms. Conflict diamonds. Actually, conflict diamonds are associated with the illegal mining of the diamonds. Okay, and with this illegal mining of diamonds, what happens here? Funding to the rebel groups, terrorist groups. All right, and against, especially against the UN recognized governments. So ऐसे में कई सारे कंट्रीज के अंदर में एंड अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर के अंदर में पीस प्रमोट करने के लिए रेबल ग्रुप्स को फंड ना मिलने पाए, टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड ना मिलने पाए, उनको रोकने के लिए किम्बर्ले प्रोसेस को हाईलाइट किया गया, इसको बनाया गया. It's a tripartite agreement. You should know the fundamentals. All right. So it's a tripartite agreement among government, diamond industry and civil society. इन तीनों के बीच का एग्रीमेंट है ये. All right. Governments, diamond industry and civil society. 2003 में शुरू किया गया. Launched 2003 to stem conflict diamonds. Rough diamonds funding rebels. Rough diamonds funding rebel wars against UN recognized governments, as I highlighted earlier, right? So scope is this, covers rough diamonds only. अब इसमें केवल, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है ध्यान रखने के लिए कि in Kimberley process we cover what kind of diamond, rough or polished? The answer will be rough diamond, not polished. Mandatory certification for trade among 60 participants. 60 पार्टिसिपेंट्स है, 86 कंट्रीज हैं. ईयू को, ईयू यूरोपियन यूनियन, यू ऑल नो वेरी वेल, और यहाँ पर कई सारे कंट्रीज हैं. सो इसीलिए आप देखें 60 पार्टिसिपेंट्स ईयू हियर है, और कंट्रीज की बात करें तो 86 कंट्रीज हैं. एंड गवर्नेंस के लिए वाइस चेयर ऑटो बिकम्स चेयर नेक्स्ट ईयर. जो भी वाइस चेयरमैन होता है वो अगले साल चेयरमैन बनता है. ऑलराइट, नॉट यूएन लिंक्ड. अभी आप यहाँ पर देखें तो यूएन किम्बर्ले प्रोसेस इज नॉट connected to the United Nations, but there is no direct connection, but indirect connection is here because it aligns with the UNSC, United Nations Security Council resolution के साथ में मैच करता है. All right, now kindly focus here. आप यहाँ पर देखें. So India's strategic role. What is the strategic role of India? All right, participation, past years and 2026 priorities. So please see here, since 2003 we are participating or we are processing, right, 14 to 15 global rough diamonds. Okay, सूरत खास तौर पर हमारा एक मेजर इंडस्ट्री है. ऑल राइट, एंड एंटी स्मगलिंग के को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. एंड 2026 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो एक्सपेक्टेड फोकस ऑन सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, टेक इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, अफ्रीका पार्टनरशिप वर्सेस चाइना's domination and MSME compliance for the ethical exports. Right, further you can see here इकोनॉमी की बात करते हैं. इंडिया एंड द बिहार कनेक्शन एज वेल. आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने जो बिहार एसोसिएटेड थिंग्स हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया है, ऐड करवाया है कि बिहार से हम क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, सी इकोनॉमी एंड ट्रेड, डायमंड सेक्टर 7 लाख जॉब्स सूरत में अकेले. एंड जॉब्स तो 7 रिजॉल्व, 3 रिजॉल्व 2 इंडस्ट्री से कनेक्ट होता है. अब अप स्किलिंग करके हम कई सारे लोगों को बिहार में आप स्किलिंग करके इस इंडस्ट्री के अंदर में भी उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. इधर इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बिहार में भी शिफ्ट किया जा सकता है. इट्स पॉसिबल. न्यू सेंटर्स बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं. ऑल राइट, एंड बिहार इज नियर टू कैलकाटा. एक्सपोर्ट भी आपका आराम से होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑल राइट, साउथ ईस्ट एशिया है, एक अच्छा मार्केट है. राइट, ओके, देन यू कैन सी हियर. आप फर्दर यहाँ पर देखो, साउथ साउथ सॉलिडारिटी, जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, राइट, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर में उनको काउंटर करने के लिए जो साउथ साउथ मतलब कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज है, फाइन,
थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनको हम लोग बुलाते हैं, तो इन्होंने ये कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ग्रोथ में, कि ठीक है, बाय दिस वे वी कैन काउंटर द अमेरिकन टैरिफ्स. सो recent visit of our prime minister to 3 African nations, this also highlight this thing. All right, यहाँ पर भी जुड़ता है ये. And this definitely can complement India Africa manufacturing push, ethical diamond hedge, economic question के खिलाफ भी हमें एक hedge मिल सकता है. Okay, then environment की बात करते हैं. Sustainable mining, all right, Ramsar sites conservation, mineral exploration norms. माइनिंग तो हम बिहार में भी देखते हैं. ऑल राइट, वेटलैंड एरियाज के आसपास भी चीजें दिखती हैं. सो अब यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो किम्बरले प्रोसेस का जो मॉडल है, सस्टेनेबल मॉडल है माइनिंग के लिए, दिस लर्निंग, दिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू बिहार एज वेल. देन यू कैन सी, आप यहाँ देखें, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन रेसिलियंस, एंड सप्लाई चेन जो है अनटरप्टेड रहे, उसमें की प्रॉब्लम ना आए. सो वी कैन implement drone monitoring for the smuggling to drone monitoring to check the smuggling को रोकने के लिए, मॉनिटर करने के लिए. ऑल राइट, एंड इसमें यूएवीज को यूज किया जा सकता है, यूएवी. ऑल राइट, नाउ these are the things associated, and next topic will be Bihar EV policy. All right, electric vehicle policy. Now please focus here. आप यहाँ देखें. Listen guys, what's happening here? Government of the Bihar, state government of the Bihar is also pushing for the 1.5x, or government of the Bihar is also pushing for the electric vehicles. All right, for the cleaner, sustainable environment, right? So what we see here, 1.5x higher subsidies than existing schemes alongside expanded. अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन is very important. One such infrastructure, uninterrupted supply of the एनर्जी की जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चार्जिंग की बातें होगी, कॉस्टिंग है, साइज ऑफ द बैटरी. दीज आर द वेरियस एरियाज ऑफ कंसर्न जिन पर मैं ध्यान रखना पड़ता है. फर्दर, कॉस्ट ऑफ द एवी व्हीकल्स. सो अगर गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने में और एवी जो व्हीकल्स हैं अगर वहां पर भी लोगों को कुछ पुश देती है, सपोर्ट करती है, सो अल्टीमेटली हम क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, एटलीस्ट वन स्टेप क्लोजर. बिकॉज द फाइनल स्टेप विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, ऑल राइट, वाया क्लीनर मेथड्स. इट इज समथिंग लाइक दिस कि हियर इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, दे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, all right, and this is the charging station, and this charging station is getting electricity, and this electricity is coming from thermal source. कहां से आ रही है? थर्मल सोर्स से आ रही है, कोल को बर्न करके आ रही है. अभी समझो आप इस बात को. सो ईवी से तो पोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक, बट ये जो थर्मल, जहां से एनर्जी आ रही है, थर्मल सोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है, वहां से तो हो रहा पोल्यूशन. पोल्यूशन यहां से तो हो रहा है. गेटिंग दिस थिंग और नॉट, एंड दिस विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. तो अभी जब तक इस पूरे के पूरे चेन में हम इसको यहां पर हटाएंगे नहीं, तब तक ये क्या पूरा चेन सस्टेनेबल है? द आंसर इज नो, द चेन इज नॉट सस्टेनेबल. ऑल राइट, ओके, सो this is a very interesting understanding you should have. So गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में, उसका जो ये सपोर्ट है कि ऑफर्स 1.5x हायर सब्सिडीज देन एग्जिस्टिंग स्कीम्स alongside expanded charging infrastructure across all districts. And definitely this is a boost to electric mobility, cut pollution, and align with national PM E-Drive scheme. You can see here PM E-Drive scheme.
ऑलराइट, 2023 में बिहार ने अपनी ईवी पॉलिसी को रखा था। अब ये जो नई जो इनिशिएटिव्स हैं वो उसी को जोड़ के रख के आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एंड फोकस इज ऑन द रूरल आउटरीच। जो रूरल आउटरीच है उसको भी जोड़ने की बातें हो रही, इसको भी, कि जो गांव देहात के जो एरियाज हैं वहां पर भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ाएं, उनको वहां तक पहुंचाएं। फाइन। फर्दर आप यहां पर देख सकते हैं अंडर द पॉलिसी हाइलाइट्स सब्सिडी बूस्ट। ओके, सो जो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो अप टू 1.5 लाख 10,000 पर के डब्ल्यू एच के आसपास सब्सिडी, 1.5 लाख पर 10,000 पर के डब्ल्यू एच फॉर 2 to 4 टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स के लिए है। बट न्यू पॉलिसी इसको एनहांस करती है वाया डायरेक्ट इंसेंटिव्स, ऑलराइट, बढ़ाने की बात करती है। चार्जिंग एक्सपेंशन की बात करें, लाइक चार्जिंग स्टेशंस एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो वी हैव चार्जिंग स्टेशंस इन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर अंडर पीएम ई बस। ऑलराइट, अभी जो नए हैं उनको और चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात हो रही है, पेट्रोल पंप्स या इधर पेट्रोल बंक्स, ढाबाज, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स 5+, अगर कहीं पर 5+ पार्किंग स्पेसेस एलिजिबल हैं, ठीक है, 5+ पार्किंग स्पेसेस जो है, जो एलिजिबल स्पेसेस हैं वहां पर भी इसको लगाया जाएगा। सो यू कैन सी पंप्स, पेट्रोल पंप्स, ढाबाज, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो 5+ पार्किंग स्पेसेस में इनको लगाया जाएगा। प्राइवेट इंसेंटिव्स भी हैं, स्टेट सपोर्ट फॉर इंस्टॉलेशन इन हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केट्स, ठीक है, यहां पर भी इसको आगे पुश किया जा रहा है कि इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ government in Bihar, all right, already working on this, and near about 150 plus electric buses, August 2025, 80 in Patna, and corridors like Bailey Road, Danapur, और बाकी हम देखते हैं इन गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, इन सारे एरियाज में चार्जिंग हब्स भी हैं। यहाँ पर फुलवारी शरीफ है, बैरिया है, इन सारे एरियाज में 30 bus capacity each। तो गवर्नमेंट इज पुशिंग दिस थिंग्स। एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 518 के आसपास जो चार्जिंग स्टेशन है वो अप्रूव हुए हैं बिहार के अंदर में। ठीक है, 172 ऑपरेशनल है एज ऑफ नवंबर 2025 अंडर पीएम ई ड्राइव 2000 सीआर का नेशनल पुश है। 2000 करोड़ का गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, नेशनल पुश है। ऑलराइट, एंड फर्दर आप यहां पर देखेंगे, सो वी हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज वेल, एंड दिस विल रिड्यूस द अर्बन एयर पॉपुलेशन, अर्बन एयर पॉल्यूशन, बिकॉज जो level of pollution is rising in Patna and nearby areas. It's a major concern. Air quality is a major concern. Dependency on the fossil fuel, all right. So we should work on to reduce the dependency on the fossil fuels, as well as अगर ये सारी चीजें होंगी, then all these things will provide a support to Bihar's green agenda, sustainable development amid climate vulnerabilities, as well as इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो क्रिएशन ऑफ द जॉब्स वाया चार्जिंग स्टेशंस, मेंटेनेंस, कॉस्ट सेविंग एज वेल, बिकॉज लोअर रनिंग कॉस्ट। सो यूजर्स जो होंगे कम्यूटेशन पर जो उनका जो चार्जेस है, जो उनका प्राइसिंग है, दैट विल गो डाउन, राइट। सो इट विल बी अनदर थिंग विच विल बी favorable, as well as this aligns with the 7 resolve. Under the 7 resolve we have resolve number 3, all right, which is infrastructure employment resolve, and a national fame policy, and pm e drive, which is associated to the electric vehicle push, right.